एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम्स दो तरह के होते हैं, अनस्टेबल एंजाइना, वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन इनकम्प्लीट, मायोकार्डियल नेक्रोसिस एब्सेंट होती है, बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इश्चीमिया डू नॉट अपीयर इन ब्लड एंड एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं होता ईसीजी में। दूसरा होता है नॉन स्टेमी, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन इज इनकम्प्लीट but is attended by relatively smaller area of myocardial necrosis. बायोकेमिकल मार्कर्स ब्लड में अपीयर करते हैं बट एसटी सेगमेंट इज नॉट एलिवेटेड, इसीलिए नॉन स्टेमी। स्टेमी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन इज कंप्लीट, larger area of myocardium is necrosed, biochemical markers are prominent and ST segment in ECG is elevated. However, unstable angina and non-STEMI can progress to STEMI. Management of NSTEMI is MONA, morphine, oxygen, nitrate, aspirin. Management of STEMI is SONAM, streptokinase, oxygen, nitrates, aspirin, morphine. ड्रग थेरेपी इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, ये समझते हैं ज़रा सा। इट इज़ इस्चीमिक नेक्रोसिस ऑफ अ पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम ड्यू टू सडन ऑक्लूजन ऑफ अ ब्रांच ऑफ कॉरोनरी आर्टरी, पूरी तरह से बंद हो जाती है। एक्यूट थ्रोम्बस, ब्लड क्लॉट बन जाता है एट द साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज़ अ यूजुअल कॉज। About a quarter of patients die before therapy can be instituted, which is a very sad fact. Remaining are best treated in specialized coronary care units. इनको कहा जाता है CCUs, coronary care units, with continuous monitoring of the hemodynamic parameters, biochemical markers and electrocardiogram to guide the selection of drugs and dosage. Now talking about the management. पेन, एंग्जाइटी एंड एप्रीहेंशन। अगर पेन रिलीव नहीं हो रहा है बाय 3 doses ऑफ ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट गिवन 5 minutes apart, then an opioid analgesic like morphine or pethidine or diazepam can be administered by the parenteral route. Then number 2, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, मैंने मोना बताई था, मॉर्फिन, ऑक्सीजनेशन, नाइट्रेट्स, एस्पिरिन। ये अनस्टेबल एंजाइना और नॉन स्टेमी का था, और स्टेमी में मैंने बताया था सोनम, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, एस्पिरिन, मॉर्फिन। ठीक है, तो इसमें मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ऑक्सीजनेशन बाय ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड असिस्टेड रेस्पिरेशन इफ रिक्वायर्ड, देन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, टिश्यू परफ्यूजन एंड माइक्रो सर्कुलेशन by slow intravenous infusion of saline or low molecular weight dextrin. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अवॉइड वॉल्यूम ओवरलोड। तो 3 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हो गए, रिलीफ ऑफ पेन, एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, ऑक्सीजनेशन, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, टिश्यू परफ्यूजन एंड माइक्रो सर्कुलेशन। Then number 4, correction of acidosis. This occurs due to lactic acid production, which can be corrected very easily by giving intravenous sodium bicarbonate infusion. 5th, prevention and treatment of arrhythmias. Prophylactic intravenous infusion of a beta blocker unless contraindicated is recommended. Its continuation orally for a few days has been shown to decrease the incidence of arrhythmias and mortality. Beta blockers used early in evolving myocardial infarction can reduce the infarct size. Myocardial salvage, salvage मतलब बचा लेता है मायोकार्डियम को, and it can prevent subsequent complications. Tachyarrhythmias can be treated with intravenous lidocaine, which is a 1B drug antiarrhythmics में। प्रोकेनामाइड और एम्योडरोन, एम्योडरोन किसको बिलोंग करता है, येस वेरी गुड, क्लास 3 को। देन ब्रैडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक कैन बी मैनेज विद एट्रोपिन और इलेक्ट्रिकल पेसिंग। फिर पंप फेलियर, नंबर 6, अगर पंप फेल हो जाए तो ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड और डिक्रीज द फिलिंग प्रेशर without unduly increasing cardiac work or lowering the blood pressure. Drugs used are furosemide, indicated if pulmonary wedge pressure is more than 20 millimeters mercury, decreases the cardiac preload. Vasodilators में venous or combined dilator is selected according to the monitored hemodynamic parameters. Drugs like glycerol trinitrate by intravenous route or nitroprusside sodium have been mainly used. नंबर 3 में आइनोट्रोपिक एजेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया ही था हार्ट फेलियर में, डोपामीन और डोब्यूटामीन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन कैन बी गिवन टू ऑगमेंट द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड टाइड ओवर द क्राइसिस. देन नंबर 7, prevention of thrombus extension,
embolism, venous thrombosis. Aspirin 150 mg to 300 mg should be given for chewing and swallowing as soon as myocardial infarction is suspected, which is then afterwards continued at a dose of 80 to 160 mg per day. ठीक, anticoagulants में heparin followed by oral anticoagulants like warfarin are used primarily to prevent deep vein thrombosis, increased risk due to bed rest and pulmonary embolism. एंटीकोगुलेंट्स को अब लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं. नंबर 8, थ्रोम्बोलाइसिस एंड रीपरफ्यूजन. सूरत नाम से याद रख सकते हो, सूरत गुजरात में है जगह. एस से स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटिप्लेज, एल्टीप्लेज, टेनेक्टिप्लेज. These are fibrinolytic agents, tissue plasminogen activators. They can be given to achieve reperfusion of the infarcted areas. Unless thrombolysis can be started within 1 to 2 hours of MI. मतलब जैसे हार्ट अटैक आया, अगर 1 से 2 घंटे के अंदर आप थ्रोम्बस को लाइस कर सकते हो, ठीक है. अगर हो सकता है तो ठीक है. वैसे बेस्ट आजकल माना जाता है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. अब प्रेफर्ड रीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर यही है, प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. अगर अवेलेबल नहीं है तब हम लोग जाएंगे फिब्रिनोलाइटिक्स या थ्रोम्बोलाइटिक्स पर. फिर नंबर 9 में प्रिवेंशन ऑफ रीमॉडलिंग एंड सब्सिक्वेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ. आप लोग बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स. बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल? यस सर, 3 bags full. 3 bags full. 3 ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers and aldosterone antagonists. 3 A's, 3 bags full. ठीक है. aldosterone antagonist में एप्लेरेनॉन, ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, B में बीटा ब्लॉकर्स. ठीक. फिर नंबर 10 लास्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स. प्लेटलेट इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल. बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं टू डिक्रीज रिस्क ऑफ रीइंफार्क्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड मोर्टालिटी. All patients not having any contraindication are put on a cardioselective beta-1 blocker like metoprolol or atenolol for at least 2 years. Then control of hyperlipidemia can be done by dietary substitution with unsaturated fats, hypolipidemic drugs, especially statins. Now talking about drugs used in the treatment of atrioventricular block. Definitive treatment of chronic heart block is pacing with an implanted cardiac pacemaker. ड्रग सिर्फ वैल्यू के तब होते हैं अगर एक्यूट या ट्रांजिएंट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो, अंडर यूज एज एन इंटरिम मेजर. मतलब जब तक हम कुछ और अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए हम दे देंगे. एट्रोपिन दे सकते हैं अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक वेहिकल ओवर एक्टिविटी की वजह से हो, लाइक डिजिटालिस टॉक्सिसिटी. सम केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एट्रोपिन 0.6 to 1.2 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर. देन नंबर 2 में सिंपैथोमाइमेटिक्स, एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन, which may overcome partial heart block or even complete third degree heart block by increasing ventricular pacemaker activity. Okay, bye.